Good morning, friend. Today I am going to take a journey to end of Earth, written by Tishani Joshi. Right? This travelogue is about author's experience when she goes on journey to Antarctica. Journey to Antarctica begins on Russian vehicle, and this Russian vehicle is Geoff Green was taking it. Moreover, Geoff Green is one of who takes interest in taking students on educational trip. Through this trip, help the students to discover the end of the earth. That is why over that place, author went to Antarctica for educational purpose as well as learn more about the place. This study tour turned out to be very insightful as the students learn about the impact of global warming as we know. Apart from this, they also learn how little step or action can impact the environment greatly. They also learn about the ice sheet of West Antarctica and if they will melt or not. So these are the main point of this lesson. Now let us come to the detail, right? Story begins with the author on journey in Russian vessel. It was going toward Antarctica. We learn the author has traveled about 100 hours in a car, aeroplane as well as the ship. Main objective of this trip or journey is to learn everything in detail about Antarctica. Further, we learn her 2 week stay there and what all is present there. The place store 90% of Earth total ice volumes with no trees, building or anything. It has 24-hour austral sunlight there. Moreover, it is covered in silence, dear friend. This makes the author wonder and surprised about the time when India and Antarctica were same land mass part. We also learn about the existence of southern supercontinent Gondwana. It existed for 650 million years ago. We learn that climate back then at a time was much warmer and sustained huge variety of flora and fauna. Means flora and fauna means that animals, trees and everything, my dear friend. Right? All this was before arrival of human being. All these things before human beings. For 500 million years, Gondwana flourished. That is why after extinction of dinosaur, means disappear of the dinosaur, the land mass separated into countries as we know today. We also learn about the reality of human climate change. Similarly, author believes that to study impact closely, one must visit Antarctica as per the experience of author. After that, we learn that Antarctica's ecosystem and how it lacks biodiversity. It is also place to observe if we wish to see what consequence a little action can bring in an environment. If ozone layer keeps depleting at present rate, it will impact the lives of inhabitants of the area like a sea animals and bird. It also impact the global carbon cycle. We also learn contributors to climate change, my dear friend, like burning of fossil fuels and more. All this is damaging the quality of Antarctica and this may cause immense danger to human life. And further, we also learn about it through examples of phytoplankton. Finally, story ends with the author observing some sea sunbathing on ice. Means author observing some seals sunbathing on ice and it makes her wonder and surprise whether this beauty will reserve for the year to come
or will future be catastrophe? The conclusion is that, my dear friend, climate change and how it is impacting our lives of other living beings dangerously. It serves as a wake-up call to start working to make planet a healthier place and good place to live. राइट। तो दोस्तों, लेखक ने शोकलस्की नामक एक रशिया के जहाज पर अंटार्कटिका का दौरा किया। वो चेन्नई से शुरू हुआ और उन्होंने 9 समय क्षेत्र, 6 चेक पॉइंट, 3 जल निकायों और 3 परिस्थिति की पार पाड़ते हुए जर्नी की। पूरी यात्रा उन्होंने 100 घंटे लगे उन्हें। जब वह अंटार्कटिका पर उतरे तो वहां अपनी विशालता, अलगाव और निर्बाध स्थिति से जादूगर था। उन्होंने सोचा कि ऐसा समय हो सकता है जब भारत और अंटार्कटिका उसी भूमिगत गोंडवाना का हिस्सा थे। गोंडवाना के बारे में लेखक कहते लगभग 650 या 500 मिलियन वर्ष पहले गोंडवाना महाद्वीप था। यह गर्म था और वनस्पति और जीवों की कई प्रजातियां वहां सफल हुई, लेकिन तब तक कोई इंसान नहीं था। लेकिन उस समय जब डायनासोर मिट गया या गायब हो गया, गोंडवाना टूटना शुरू हो गया। उसी समय भारत ने एशिया के खिलाफ धक्का दिया और हिमालय बनाने के लिए अपनी परत की तोड़ दिया। डेक्स पैसेज खोलने के लिए दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका में शामिल होने के लिए प्रेरित हुआ। इसने एक ठंडा प्रवाह बना दिया जो दक्षिण ध्रुव के चारों ओर चला गया। यह अंटार्कटिका ठंडा और अलग बन गया, अलग पड़ गया। अंटार्कटिका का महत्व। अंटार्कटिका अब उस इतिहास का हिस्सा है। यह हमें यह समझाने में मदद करता है कि हम कहां से आए थे और हम कहां जा रहे हैं। राइट। अंटार्कटिका मनुष्यों द्वारा असंतुष्ट बनाई हुई जगह है। इस बर्फ कोर में आधे मिलियन पुराने कार्बन रिकॉर्ड है। यह हमें पृथ्वी के अतीत, वर्तमान और भविष्य की जांच करने में मदद करता है। अंटार्कटिका बर्फ का एक विशाल विस्तार है। यह सभी बंजर है, कोई मानव मार्कर नहीं है, कोई पेड़, भवन या कोई नहीं। विशाल बर्फबारी है, नीले वेल है, लेकिन बहुत छोटी चीजें भी है। कोई सुबह, दोपहर, शाम, रातें नहीं, 24 घंटे दिन है। हर जगह मौन है और शांति है। तो आप वहां समय और स्थान को, सभी सांसारिक भावनाओं को खो देते हैं। राइट। मानव सभ्यता केवल 12,000 वर्ष पुरानी है। यह भूवैज्ञानिक घड़ी पर केवल कुछ सेकंड पुराना है, लेकिन इस छोटी अवधि के दौरान आदमी ने बहुत भ्रम पैदा किया है। उसने कस्बों और शहरों का निर्माण किया। उन्होंने सीमित प्राकृतिक संसाधनों को पकड़ने के लिए कई अन्य प्रजातियों को मिटा भी दिया है। जीवाश्म जलाने से मनुष्य ने दुनिया भर में कार्बन डाइऑक्साइड का एक कंबल बना दिया है, चादर जैसे ओढ़ दी हो। यह वैश्विक तापमान बढ़ा रहा है दोस्तों। तापमान में इस वृद्धि ने जलवायु परिवर्तनों का कारण बना दिया है। यह सबसे गर्म बहस वाला सवाल है। कई वैज्ञानिक आपदा की भविष्यवाणी करते हैं। अंटार्कटिका इन परिवर्तनों के प्रभाव को देखने का स्थान है, क्योंकि इसमें एक सरल पारिस्थितिक तंत्र है। इसीलिए पर्यावरण में थोड़ा बदलाव एक बड़ा प्रभाव डाल सकता है। एक उदाहरण के लिए प्लैंकटन ही ले लो। वे सिंगल सेल वाले पौधे हैं। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वे कार्बनिक यौगिक को बनाने के लिए कार्बन को आत्मसात करते हैं। वे दक्षिणी महासागरों में पूरी खाद्य श्रृंखला बनाए रखते हैं। वे वैश्विक कार्बन चक्र को नियंत्रित करते हैं। ओजोन परत की कोई ओजोन वायु अपने
उसी गति से खत्म हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिटोप्लैंक्टन अपंग हो जाएगा। अगर वे काम नहीं करते हैं तो पूरी खाद्य श्रृंखला और वैश्विक कार्बन चक्र गिर जाएगा। राइट। तो यहाँ आई स्टूडेंट्स कैनाइड जो ब्रिंग के अध्यक्षा में कार्यक्रम है, उन्होंने छात्रों को अंटार्कटिका और दुनिया के अंत में लेने का विकल्प चुना था। वह युवा छात्रों को ग्रह को समझाने और सम्मान करने के लिए यहाँ लेके गए थे। छात्र युवा है, वे सीखने और कार्य करने के लिए तैयार है। वे वास्तव में ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को देख सकते हैं। वो हिम नद पीछे हटने और बर्फ अलमारियों को गिरने देखते हैं। वे अप्रभावित नहीं रह सकते। वे देख सकते हैं कि खतरा वास्तविक है। वे भविष्य की नीति निर्माता है। उनके पास आदर्शवाद है और वे कार्य करेंगे। अंटार्कटिका के नजदीक श्लोक स्काई बर्फ के सफेद विश्व के बीच पकड़ा गया था एक जहाज। यह आगे नहीं जा सकता है तो कप्तान ने घूमने और उतर जाने का फैसला किया। लेकिन ऐसा करने से पहले उसने सभी गैंगप्लैंक पर चढ़ने और समुद्र पर चलने का आदेश दिया। तो उनमें से सभी 52 बर्फ पर चले गए। बर्फ के नीचे एक जीवित सागर था। उन्होंने बर्फ के फूलों को खुद सील कर देखा। वे एक बरगद के पेड़ की छाया में झूठ बोलने वाले भटक कुत्ते की तरह लग रहे थे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अंटार्कटिका के बारे में दिया है दोस्तों, और ग्लोबल वार्मिंग का कहाँ कैसा असर हो रहा है हमारी जिंदगी पे। तो राइटर कहते हैं कि यू मस्ट विजिट अंटार्कटिका एटलीस्ट फॉर स्टडी हाउ इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग ऑन ह्यूमन बीइंग एंड व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। दैट इज द लेसन अबाउट, राइट। थैंक यू।